Hello everyone, my name is Lohit Jindal and I'm back with the third session of mensuration. So guys, this is the third session on mensuration. Today we'll be dealing with multiple shapes, right? And casting of one shape to the another, right? So before moving forward, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay. So from the past 8+ years, I have been teaching for JEE mathematics mostly and for Olympiads. Okay. So guys, आज हम क्या देखने वाले हैं? In the third session, we'll be seeing the questions where या तो NSCGS के previous year questions है या फिर these are the kind of questions that are likely to come in NSCGS, or you can say basically these are NSCGS level, right? So बच्चों एक काम करना है आपको, keep your notebooks and pens ready, तो साथ साथ में question solve करो, right? Before seeing the video of me solving it, please pause the video and solve the question first, right? पहले आप खुद try करो, and then if you're not understanding or something, then you can obviously watch the video further, right? तो but question पहले try करो, then watch the solution, because I hope उससे भी आप कुछ learn करोगे, because your method and my method might differ also, है ना? So in both ways you'll gain something and learn something, right? So towards the end I'll also give you make an announcement also, so stay tuned, right? Okay, all right guys, so start करते हैं. Let's start with the today's session. Let's start with the first question of the day. तो बच्चों ये है NSCGS 2010 का क्वेश्चन, राइट? सो गाइज NSCGS में एक्चुअली मेंसुरेशन इज सच अ चैप्टर जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है. सो द क्वेश्चंस आर नॉट सो दैट मच डिफिकल्ट. सो रेदर दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप अपनी स्मार्टनेस के साथ टाइम सेव कर सकते हो ऑन एंड रेदर बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो वो टाइम, राइट? बिकॉज दिस इज हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ द टेस्ट. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जल्दी हो जाने चाहिए, राइट? सो लेट्स सी गाइस, रीड करते हैं इसको. इन केस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो 2:3. So बच्चों, this is a cylinder, right? This is of this shape, right? So the radius r and height h. So what is given to us? Radius of the base upon h is 2/3, right? So rather मैं इसके accordingly क्या बोल सकता हूँ? Let's take r is equal to 2k and h is equal to 3k. I can write it in this format, right? So now guys, क्या लिखना है मुझे? I have to find the ratio of the lateral surface area to the total surface area. Now what is lateral surface area? That is given by, that is the curved surface area, right बच्चों? साइड वाला एरिया. So except the top and the bottom. तो अगर टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो जो एरिया बच रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज सिंपली 2 पाई r into h, राइट? एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इसी एरिया के अंदर 2 पाई r h के साथ में आपको बेस का और टॉप का एरिया ऐड कर देना है, राइट? विच इज 2 पाई r स्क्वायर, राइट? सो गाइज कुछ नहीं करना है, अब आपको इनका रेशियो करना है. यू हैव टू फाइंड द रेशियोज, राइट? LSA अपॉन TSA. नाउ गाइज आप एक चीज नोटिस करो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. आई कैन टेक एक्चुअली 2 पाई r कॉमन लिख सकते हैं, एंड आई कैन राइट इट एज r प्लस h, राइट? सो 2 पाई r h डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू r प्लस h. सो बच्चों आप देख सकते हो 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, एंड वन ऑफ द r इज ऑल्सो कैंसिल्ड. So effective expression that you are left with is h upon r plus h. So अब क्या कर सकते हो आप? ये वाले values put कर सकते हो. So h is 3k upon r plus h, that will be 3k plus 2k, right? So that is 3k upon 5k. So आप ratio देख सकते हो, that will be 3 upon 5. Of course the k term will get cancelled. So answer would be 3 upon 5, right? So the ratio of the lateral surface area and the total surface area in such a kind of cylinder would be 3:5. So B option आएगा. Okay, always generally have a tendency to check, because बच्चे 5/3 ratio भी option में है. Okay, just make it a habit कि हाँ जब answer कर रहे हो question को finally you see the last line of the question, है ना, जो पूछा जा रहा है उसको, just to confirm so that you don't make a silly mistake. इसी को आप silly mistake बोलते हो. So make your own checks. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई जाके सही कर सकता है सिली मिस्टेक को, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाता है. सो गाइज दैट इज एज बैड एज गेटिंग नॉट नोइंग. इट इज इवन वर्स देन नॉट नोइंग द क्वेश्चन, है ना? क्योंकि अगर आपने सिली मिस्टेक किया, आपने स्पेंड भी किया, टाइम भी स्पेंड किया क्वेश्चन पे, एंड यू स्टिल गॉट इट रॉन्ग, है ना? सो दैट इज लाइक डबल टाइम वेस्टेज. आपने टाइम भी अप्लाई किया उस पर और गलत भी हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी या फिर नंबर भी नहीं मिले,
है ना, इससे अच्छा तो छोड़ ही देते हम उसको, उसकी जगह कोई और क्वेश्चन कर लेते, राइट। सो वी हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज मिनिमाइज अवर सिली मिस्टेक्स, होनी ही नहीं चाहिए आइडियली तो, ठीक है। सो यू कैन मेक अ चेक, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लाइन पढ़ लो एक बार, जब फाइनल आंसर मार्क करने वाले हो लास्ट लाइन पढ़ लो कि हाँ एग्जैक्टली यही पूछा जा रहा था ना, सो दैट इज इट। सो इन दिस क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड, दैट इज 3:5। okay, so let's check the answer on the next slide, ठीक है। okay, yes, so the answer is okay. Did we make a mistake? It's written 2:5. okay, okay, what I can see is 3:5. okay, let's check the solution because I am seeing that it's not correct, right? yes guys, so देखा आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, this answer has been marked wrong, so B option is the answer, as we can see the solution also, right? We did not make any mistake in this case. So actually C option is the answer, right? Sorry, B option, that's 3:5. So it's just marked wrong on the answer side slide, nothing else, right? So बच्चों, I hope this question is clear, and आप देख सकते हो NSCS में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, right? So ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत भी नहीं होने चाहिए और पक्के से सही होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द मार्क्स, कि तो हर कोई लेके आएगा ना। सो हाउ विल यू गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर्स? अगर आपने इसको ही गलत कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देन गेन मार्क्स ओवर द अदर पीपल, राइट? ऑलराइट गाइस, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज इट से? अ हेमिस्फेरिकल बाउल of negligible thickness has a rim of circumference 132 centimeters. So guys देखो, सबसे पहले स्फीयर या हेमिस्फीयर के लिए एक ही पैरामीटर होता है उसको डिफाइन करने के लिए, उसका साइज डिफाइन करने के लिए, दैट इज द रेडियस, राइट? देखो सिलेंडर में तो रेडियस भी होता है, हाइट भी होता है, दो चीजें चाहिए आपको, है ना। कोन के लिए भी रेडियस और हाइट दो चीजें चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द कोन, राइट? लेकिन स्फीयर या हेमिस्फीयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको सिंपल एक रेडियस चाहिए और कोई डायमेंशन चाहिए ही नहीं, है ही नहीं कोई उसकी डायमेंशन, है ना। सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन से डिफाइन हो जाता है वो, रेडियस से। सो इन दिस केस इफ यू आर बीइंग गिवन द सर्कमफेरेंस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, हमें ये समझना है कि इनडायरेक्टली मुझे रेडियस दिया जा रहा है ना, रेडियस मुझे पता है ऑलरेडी, सो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, ऐसा नहीं कि वो अननोन है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, its outer and inner surfaces are painted at the rate of ₹5 per 100 centimeter square. What is the cost of painting? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी है। वन थिंग इज नेग्लिजिबल थिकनेस। नेग्लिजिबल थिकनेस बोलने का क्या मतलब हुआ? बिकॉज इफ इट इज द नेग्लिजिबल थिकनेस, तो आउटर और इनर रेडियस वी कैन अज्यूम टू बी ऑलमोस्ट इक्वल, राइट? तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली बच्चों आप ये सोचो, अगर आपके पास एक बाउल है तो उसके बाहर का एरिया, यहाँ पे एरिया, और अंदर एरिया, यहाँ पे जो एरिया है, सो वो प्रैक्टिकली सेम हो गया, दोनों हेमिस्फीयर है, हाफ ऑफ हेमिस्फीयर्स हैं। सो एक्चुअली अगर आप पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे, that will be 2 times 2 hemispheres, right? So that is 2 pi r square. So ideally it's complete, total area is like a outer surface area of a complete sphere, that is 4 pi r square, ठीक है। So 4 pi r square आपको फाइंड करना है। what you have been given is circumference of the rim, और rim क्या होता है? सर्कुलर होता है, right? okay, I'll show you the hemispherical bowl, it will be something like this। तो ये तो सर्कुलर है ना आपके पास, right? So circumference क्या कितना दिया हुआ है? 132, and that circumference is given by 2 pi r is equal to 132, right? So क्या करना है यहाँ से? Let's find the radius. So 2 into 22/7 into r is 132. So बच्चों अगर आप जैसा ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर, that 22 cancels 132 for 6, ठीक है, ये 2 भी कैंसिल कर देगा 6 को 3 पे। So the value of your r value is going to be 7 into 3, that's 21 centimeters. So 21 centimeters is the radius. अब फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एक्सप्रेशन? सो 4 इन, ओके, एक काम करते हैं, उसमें स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं। इट्स बेसिकली 2 pi r इंटू 2r, राइट? ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, इट्स 2 pi r इंटू 2r। सो 2 pi r का वैल्यू 132 डायरेक्ट पता है ना, लेट्स पुट इन दैट। क्या करना है? पाई का वैल्यू वगैरह डाल के कैंसिलेशन कर देंगे। सो सिंपली पुट कर देते हैं इंटू 2 इंटू 21, right? So that is my total surface area in centimeter square में। Now coming to the cost of painting, what is given? Cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square. So total surface area कितना है? 132 into 2 into 21 into 5 upon 100 centimeter square. This much rupees should be the cost, ठीक है। So बच्चों अभी आपके ऊपर है, थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, कैंसिल करते हैं। 5 will cancel 100 for 20, 2 will cancel this for 10,
ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन ना ही करें तो फायदा, आई थिंक एनीवेज 10 को कैंसिल करेंगे और फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो इट्स बेटर दिस वे. So 132 into 21. So 132 into 2 is 26,400 plus 132. Oh, sorry, 1320. So 2640 plus 132. So how much is 2640 plus 132? 2772 divided by 10 लिखा हुआ है. So your cost is rupees 277.2 to be exact. So 277 rupees and 20 paisa. Okay, so according to the options it would be B option. B option should be the correct answer. ठीक है, सो आप देख सकते हो कैलकुलेशन भी अगर आप स्मार्टली करोगे तो बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं हमें. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई 132 into 21. ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हाउ आई एम थिंकिंग इज 132 into 20 plus 132, है ना? तो वो सोचना थोड़ा इजी हो जाता है. यू कैन डू दीस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस ओरली देन, अदरवाइज थोड़ा सोचना पड़ेगा. ओके, so with practice you can become faster in that also. Okay, so guys I hope this question is clear. ठीक है, so समझ में आया hope सबको. Let's check the answer on the next slide. Okay, this time yes, the answer is B option, right? 277.2. and let's see the solution slide also. Okay, if you want, but more or less it's the same thing, right? So rather guys मैं यहाँ से ये बोलना चाहूंगा from the solution, like हमने यहाँ पे ये middle में step calculate नहीं किया था, right? 5544 फाइंड नहीं किया, बट सो एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, राइट? व्हाई डू आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग इन द इंटरमीडिएट स्टेप? ठीक है ना, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो वहां पे, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली ट्राई टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स, जिसकी जरूरत नहीं है. आप उसको मल्टीप्लिकेशन में रखो, फ्रैक्शंस की फॉर्म में रखो, एंड ओनली इन द लास्ट स्टेप ट्राई टू पुट इन द वैल्यूज, सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए. और काफी बार क्या होगा, फायदा कैसे होगा, कैलकुलेशंस में वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती काफी बार. ओके, सो विन विन सिनेरियो बन जाएगा, राइट? ओके, लेट्स सी गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14. सो बच्चों यहाँ पे एक चीज और गलती कहाँ होती है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रेडियस नहीं ले लेना 14 को. ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे गलती हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना. तो कीप इन माइंड, डायमीटर लिखा है तो बल्कि अंडरलाइन कर लो उस बात को. सो सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 है, डायमीटर 14 है, सो रेडियस इज 7. सो लेट मी राइट हियर, सो इट मींस रेडियस इज 7 centimeter, right? So is melted to make two cones in the proportion of their volumes as 3:4, keeping the height 10 only. So height 10 ही रखा है हमने, लेकिन वॉल्यूम्स का रेशियो 3:4 की फॉर्म में बांट दिया उसको, उसी को डिवाइड कर दिया है हमने, है ना? सो व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्लैट सरफेस एरिया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फ्लैट सरफेस एरिया कौन सा होता है, जो प्लेन है, राइट? सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वो अपने को जो कोन्स मिलेंगे वो क्या होंगे, राइट? व्हाट वुड बी द रेडिया एंड सो ऑन. तो देखते हैं. तो बच्चों देखो, वॉल्यूम्स को डिवाइड किया 3:4 में, राइट? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलिंड्रिकल? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वुड बी पाई आर स्क्वायर एच, राइट? तो पाई इज 22/7. ओके, एक हिंट बताता हूँ बच्चों, जब भी डायमेंशन 7 के मल्टीपल्स में हो ना, इट्स यूजफुल टू टेक पाई एज 22/7 मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज इट विल कैंसिल द 7 टर्म, राइट? तो उससे फायदा हो जाता है. सो आर स्क्वायर इज 7 into 7 into h इज 10. ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, आपको दिख रहा है 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड. रादर एक्चुअली पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन द टर्म्स ऑफ पाई, है ना? सो आई थिंक बच्चों रहने देते हैं इस तरह से करने के लिए, है ना? ऑल्दो यू कैन डू इट बट इट विल नॉट हेल्प यू मच. तो एक काम करते हैं, इसको पाई ही लिखा रहने देते हैं, लेट इट बी रिटन एज पाई ओनली. सो दिस इज सिंपली 490 पाई. ठीक है, सो दो कॉन्स में आप डिवाइड कर रहे हो, है ना? लेट्स नेम देम एज V1 एंड V2. सो गाइस 3:4 की फॉर्म में वॉल्यूम्स हैं, राइट? सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ V1? वुडंट आई से 3/3+4? रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए इतना सबको. सो फर्स्ट कोन का रेशियो कितना है, 3/7 ऑफ द टोटल, 3/7 ऑफ द V सिलेंडर, राइट? जो टोटल हमने निकाला, सो दैट विल बी 3/7 into 490 पाई. सो 7 विल कैंसिल 490 फॉर 70, तो कितना है ये, 210 पाई, राइट? सो V1 इज 210 पाई, V2 कितना आएगा, 490 में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, नहीं तो 4/7 भी कर सकते हो. सो इट्स द काइंड ऑफ द सेम थिंग. सो दैट विल बी 490 pi minus 210 pi, that's 280 pi, right guys?
तो बच्चों आपको 2 वॉल्यूम्स तो आ गए, राइट? द पॉइंट इज नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस. ओके ओके, ऑलराइट, लेट्स से बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h, राइट? ठीक है बच्चों, तो मुझे r1 स्क्वायर निकाल लेते हैं, जरूरत ही नहीं आई थिंक. पाई r1 स्क्वायर कितना होगा? एक्चुअली एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई r1 स्क्वायर. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई r1 स्क्वायर? आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कुछ और. पाई r1 स्क्वायर इज, इतना टर्म रखना है आपको, h कितना इसमें भी 10 है, राइट? दिस इज 10, so actually I can cancel this thing. h is 10, so this will cancel one of the zeros, right? तो क्या बन गया? 21 into 3, simple, 63, right? So pi r1 square का वैल्यू कितना है? 63 pi, right? So pi r1 square is 63 pi. Similarly ये 280 pi को भी लिख देते हैं, 1/3 pi r2 square into h is 10. So the same calculation again, 10 will cancel this 0. तो पाई r2 स्क्वायर कितना आएगा? ओके, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं. पाई r2 स्क्वायर इज 28 times 3, so that is how much? 84 pi. so बच्चों इसमें अब करने से हुआ क्या? एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना था, मेरे माइंड में अभी भी वही चीज चल रही थी कि मुझे फाइंड क्या करना है. आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्लैट सरफेस एरिया. सो फॉर अ कोन व्हाट विल बी द फ्लैट सरफेस एरिया? जो नीचे का एक सर्कल है कोन के, राइट? दैट इज पाई r स्क्वायर. तभी तो मैंने पाई r1 स्क्वायर की और पाई r2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, right? This is the flat surface area 1, this is the flat surface area, okay, of the first cone, and this is for the second one. So what is the final total flat surface area? So flat surface area final, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, how much is that? 84 pi plus 63 pi, तो कितना बन गया? This is 147 pi. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. बट अब क्या था? इनिशियल. व्हाट इज द फ्लैट सरफेस एरिया इनिशियल? सो इनिशियल कितना था? सॉलिड सिलेंडर था, उसका टॉप और बॉटम था, सो दैट इज 2 पाई r स्क्वायर ऑफ द इनिशियल सिलेंडर. सो 2 पाई r स्क्वायर, सो दैट इज 2 पाई इंटू r कितना था? 7, सो 7 स्क्वायर. दिस इज 49 into 2, so 98 pi was the initial. So बच्चों आपको क्या देखना है? Initial was 98, final is 147, right? What is the percentage increase? Percentage increase is going to be, increase कितना हुआ? 98 से 147, so 147 minus 98 times pi divided by initial was 98 pi into 100, so that is going to be 50%. देखो ऊपर कितना आया? 49 by 98 into 100, so that is going to be 50%. तो 50% increase हो गया in the flat surface area if I divided cylinder, melted it into 2 cones. total flat surface area हमारा 50% से बढ़ गया. ओके, सो यू नो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप किसी एक चीज को, ऑब्जेक्ट को कट करते हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में रिकास्ट कर देते हो इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जनरली दिस इज अबाउट द, चलो फ्लैट सरफेस एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सरफेस एरिया की बात करने जा रहा हूँ मैं. सो बेसिकली एनी टाइम यू डिवाइड अ सिंगल ऑब्जेक्ट इनटू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, है ना, आपने उसको रिकास्ट कर दिया या मेल्ट कर दिया, ओके, इट विल ऑलवेज बी द केस कि दैट द टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज. Okay, if you have divided an object into multiple sub objects, total surface area will increase always. आप कभी भी try करके देख लो, ठीक है? So that is the reason powdered forms are used for the objects which are to be dissolved quickly in water, क्योंकि surface area पे dependent होता है mixing, right? So that's the reason. So what is the answer in this case? C option will be the answer, right? 50% increase, percentage increase पूछा जा रहा है, so 50% is the answer. And let's confirm on the next slide. Okay, check करते हैं. So yes guys, देखो C option is the answer, 50%. Okay, so you can have a look at the solution also. Okay, more or less the same thing. So in this case actually in the solution they have found the values of radii, but I have not. I've just मैंने तो pi r square का direct value निकाल लिया, because I knew in the end I have to just check the relative relation कि 98 pi और 147 pi में देखना था. I don't need to exactly find the radii or you know मतलब calculation बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, right? I could reduce my calculations like that. Okay, let's see the next one guys. I hope सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? All right, now another one.
So okay, question is, okay, Q is the point of intersection of the diagonals of one face of a cube whose edges have a length of 2 units. Find the length of QR. So बच्चों आप डायग्राम देख सकते हो, आपको ये QR लेंथ का एरिया लेंथ ढूंढना है. So it's very interesting actually. So let me mark some points. Okay, let's say this is P. Okay, I think this much will be sufficient. So बच्चों यहाँ पे आप देखो what is PR? That is 2, right? That is the side of the cube. ये भी 2 है, right? So height is also 2. Can I find PQ somehow? That is simply, I can okay show you. To find PQ, it's like a square, है ना? मैं उस साइड को देख रहा हूँ सिर्फ. I'm just looking at its sides. ठीक है? Okay, just let me draw the diagram. Okay. All right. अब और क्या करना है मुझे? So it's like this, right? The diagram will look something like this. अगर मैं इस फेस को देख रहा हूँ, right? The face on which P and Q are lying. या फिर मैं नाम दे देता हूँ PQSTU. PSTU अगर फेस को मैं देखता हूँ, this point is P, this point is Q. मुझे PQ का लेंथ फाइंड करना है एक बार. तो फर्स्ट जॉब इज दिस थिंग. सो व्हाट इज PQ? बच्चों क्या कर सकते हैं? आइडली आई कुड डू PT/2. या तो मैं ये कर सकता हूँ, और यू कैन सिंपली सी ना, मतलब जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको मार्क कर देता हूँ. दिस पॉइंट इज Q. व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ना. आपको सबको प्रॉपर्टीज तो पता ही है स्क्वायर के. सो Q इज द मिडल ऑफ द स्क्वायर. सो इफ द साइड वाज 1 यूनिट, सो जो मैंने अभी ये रेड लाइंस मार्क की हैं, सो इसकी लेंथ भी 1 हो जाएगी, इसकी लेंथ भी 1 हो जाएगी. सो व्हाट इज गोइंग टू बी PQ स्क्वायर, है ना? सो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन राइट इज PQ square is equal to 1 square plus 1 square, that is 2. So PQ square is going to be equal to 2. अब आप ये मत बोलना कि PQ नहीं फाइंड कर रहे, will not need to actually. Why? Now if you consider this triangle PRQ, okay, PRQ, right? That's a right angle triangle. It's actually a right angle triangle. ठीक है? Because PR जो साइड है, that is perpendicular to this whole face. अगर इस पूरे face के perpendicular है, तो PQ के भी तो perpendicular है, right? So your triangle PRQ is a right angle triangle. Triangle PRQ is a right triangle. Okay, right angle at किस पॉइंट पे राइट एंगल है? P पॉइंट पे, राइट? सो ड्यू टू दैट थिंग मुझे RQ फाइंड करना है, QR फाइंड करना है. सो आई कैन राइट QR स्क्वायर इज गोइंग टू बी RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट? सिंपल इनफ. तो कुछ भी नहीं करना. दैट्स व्हाई मैंने PQ स्क्वायर से PQ नहीं फाइंड करा था, बिकॉज आई ओनली नीडेड टू यूज PQ स्क्वायर. So let's put in the values. What is RP? That is 2. So 2 square. PQ square overall is 2. So 4 plus 2, this is going to be 6. And what is going to be QR? Under root of 6. Right? So itna simple hai. Under root 6 units. Okay. So your answer according to the options will be option C. So that's how easy it is. अब just Pythagoras theorem apply कर रहे हो. But the reason is you have to know कि orientation क्या है, कहाँ पे right angle triangle बन रहा है और कैसे find करनी है ये lengths. Okay. Although आपको ये diagonal का idea तो होता है कि RT कैसे ढूंढना है, right? So but the point here is RQ की बात पूछी जा रही है. So if you know the derivation of the length of the diagonal of a cube or cuboid, you will certainly know कि हाँ RQ कैसे find करना है. You should know this, right? I hope सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ सही से, right? So let's move on. Next देखते हैं. Okay, and also confirm the answer to this question. Okay, yes. So the correct answer is option C. You can see it here, and you can check out the solution also. Okay, so that is this. So this is the solution, right? So you find PS square. They have named it PS instead. So PS square and then half of it, and then again Pythagoras theorem to find RQ, QR. Okay, all right. Now moving on to the next question. All right. So क्या बोल रहा है question? Let's understand. A rectangular block with the dimensions 4 by 5 and 6. Okay, so basically it's a cuboid. Okay, is made up of cubes each with side length 1 centimeter. So थोड़ा लीगो वाला फॉर्म बन गया, right? You have small parts of 1 centimeter के cubes हैं आपके पास बहुत सारे. Okay, but you have fitted into a form of a cuboid.
या फिर कभी आपने शुगर क्यूब्स का बॉक्स देखा होगा ना, सो शुगर क्यूब्स आर द इन द फॉर्म्स ऑफ क्यूब, बट ओवरऑल जो बॉक्स है वो क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म में, राइट। सो इफ 1 सेंटीमीटर cubes are removed from this larger rectangular block, अब आपने अगर वो छोटे छोटे ब्लॉक्स रिमूव करने, what is the minimum number of these cubes that must be removed so that the resulting solid is itself a cube? Okay, so बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा 4 by 5 by 6 का क्यूब है, क्यूबॉइड है, राइट। अगर आपको क्यूब बनाना है, देखो क्या 6 साइड का क्यूब बना सकते हो? कैन यू फॉर्म अ साइड क्यूब ऑफ साइड 6? नहीं बना सकते हो, बिकॉज उसके लिए तो क्यूब डालने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे फर्दर, है ना, बिकॉज देन ईच साइड हैव टू बी 6। 5 का बना सकते हो, 5 में भी प्रॉब्लम है, 5 में 6 वाले साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रिमूव सम टू मेक इट 6, बट 4 वाले को 5 कैसे बनाएंगे, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको रिमूव करने हैं क्यूब सिर्फ, सो द बिगेस्ट क्यूब दैट यू कुड फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग थिंग्स, जो बचेगा वो 4 साइड का ही बच सकता है, क्योंकि इसकी 4 साइड तो है ही ना मिनिमम, है ना। तो 4 सेंटीमीटर का साइड का एक क्यूब आप बचा सकते हो उसमें से हटा हटा के, राइट। सो इट्स लाइक, लेट्स से आपके पास एक ऐसे क्यूबॉइड पड़ा हुआ है, यू विल कट इट लाइक दिस, है ना, काइंड ऑफ कटिंग ही तो करनी है आपको, यू विल कट इट अलोंग दिस एंड दिस टू मेक इट अ क्यूब, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द डायमेंशन इज 4। सो बच्चों एक सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल क्यूब कितना है? वॉल्यूम कितना है? 4 into 5 by 6, so that is how much? 5 into 4 is 20 into 6 is 120 centimeter cube, so it is equivalent to 120 cubes। इसके अंदर 120 cubes रहे होंगे, राइट, 120 small cubes। तो अब आपका जो V फाइनल है, जो फाइनल बना रहे हो, that can maximum be of side 4, उससे बड़ा क्यूब तो बना गया नहीं रिमूव करने से सिर्फ, so that is going to be 4 cube, that's 64 centimeter cube। so इसका मतलब आपको कितने रिमूव किए गए होंगे, ठीक है ना, क्यूब्स रिमूव्ड विल बी 120 minus 64, इतने कम से कम करने पड़ेंगे। इसके बाद जैसे 3 by 3 का तो बना ही सकते हो, we have to find the minimum number of these cubes that have to be removed, right, so that this is the minimum। so ये कितना आ जाएगा? 56। so you have to remove at least 56 cubes to make it a cube out of the cuboid। इसका मतलब आपको बड़े से बड़ा क्यूबॉइड फॉर्म करना था उसमें से, राइट, दैट you could get would be 4 centimeter side, so 56 will be the answer, D option, right बच्चों। I hope this thing is clear। इसमें ये आपको स्मार्टनेस सोचनी है, एक्चुअली सॉल्विंग इज नथिंग डिफिकल्ट, बट आपको ये सोचना पड़ेगा मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स हटाने हैं, लेकिन चाहिए आपको जो बचेगा वॉल्यूम, क्यूब बनना चाहिए जो आपके पास बड़ा क्यूब बचना चाहिए, दैट शुड हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑब्वियसली। तो 4 साइड का क्यूब से बड़ा नहीं बना सकते हो आप जस्ट बाय रिमूविंग, अगर ऐड कर सकते होते फिर तो अलग केस बन जाता कुछ और ही, but just by removing you could only form a cube of side 4, largest one, right। I hope this thing is clear। Let's see the answer, it's 56 and you can check out the solution also, right। so 4 by 4 by 4 का cube बनेगा, all right। I hope these questions are clear guys, ठीक है। so okay, question wise that's it from my end guys, ठीक है। so guys what I wanted to announce or tell you, inform you is from the starting of this week, okay, from the starting of August, 2 new batches are going to be launched, okay, are going to start, that is pre-RMO new batch and NSCJS के लिए भी शुरू से preparation start कर रहे हैं हम, NSCJS new batch, okay। so if you guys are interested and want to see, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बच्चे लेट हो गए, लेट कुछ नहीं होता guys, को भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप करोगे अभी भी, there's still time, paper exam is going to be held in November most probably, ठीक है, उससे पहले तो नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि जनरल वे में भी नवंबर में होता है, सो देयर आर स्टिल 2 and 3 months, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर एटलीस्ट 3 तो पूरे हैं, सो यू कैन मेक आउट द मोस्ट ऑफ इट, ओके, you can join these batches, the link is provided in the description, is provided in the description of this video, ठीक है, लिंक वगैरह सब प्रोवाइडेड है, so if you are interested please click on that link and you can register for that, okay, our team will contact you accordingly so that you can start with your NSCJS preparation even at this time, okay, try to do as much as you can, है ना, कोशिश करोगे तो हो सकता है हो भी जाए, so it's very good, और आई एम श्योर कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे हो भी जाएगा, क्लियर, राइट। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, अभी भी आप कर सकते हो स्टार्ट, यस थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा बट इट्स स्टिल पॉसिबल, यू स्टिल हैव 3 months, 3 महीने तो बहुत कुछ हो जाता है, राइट। ओके गाइस, दैट्स ऑल आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट, एंड आई होप सबको मजा आया, ये क्वेश्चन समझ में आए सबको। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉम्बिनेटोरिक्स, ओके, काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे।
So if possible, please revise some of those topics and we'll see some good questions of और NSCS में आए हुए questions को हम discuss करेंगे in the next class. Okay, in the next session. Okay, all right guys, thank you everyone, we'll see you next week same time. Okay, bye guys, thank you.